آداب، یہ اعتماد کی خبریں۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ خانہ کعبہ کی چابی عبدالوہاب بن زین العابدین کے حوالے، سعودی حکومت کا فیصلہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں جے فلسطین کے نعرے، جے شری رام کے جواب میں صدر مجلس نے بلند کی صدائے تکبیر۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت، فیصلہ محفوظ۔ اور لوک سبھا اسپیکر کے لیے ہوگا انتخاب، حکمران جماعت اور اپوزیشن نے اتارے امیدوار میدان میں۔ سعودی عرب کے حکام نے شیخ صالح الشیبی کے انتقال کے بعد عبدالوہاب بن زین العابدین شیبی کو خانہ کعبہ کا نیا چیف ہولڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی اور مقام ابراہیم عبدالوہاب بن زین العابدین کے حوالے کرنے کی تقریب پیر 24 جون کو منعقد ہوئی۔ وہ روایت کو برقرار رکھنے والے اپنے خاندان کے 78ویں اور قصی ابن کلاب کے دور سے 110ویں رکن ہیں۔ نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہائی کے ایک قدم اور قریب ہو گئے۔ نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر، خالد یوسف چودھری اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ خاور مانیکا کی جانب سے وکیل زاہد آصف چودھری عدالت میں حاضر ہوئے۔ جاریہ سال حج کی سعادت سے مشرف ہونے والوں میں معروف ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا، کرکٹر اظہر الدین کے فرزند اسد الدین اور ان کی اہلیہ انم مرزا شامل ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واقع نئی دہلی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت اور ریاض کمیونٹی لیڈر آفتاب نظامی کی نمائندگی پر اور انڈین ایمبیسڈر ڈاکٹر سہیل اعجاز نے قونصلیٹ جنرل جدہ کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ خاص مہمانوں کو امیگریشن سے ریسیو کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ انڈین ایمبیسڈر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے ثانیہ مرزا کو ریاض آنے کی دعوت دی تھی۔ جدہ ایئرپورٹ پر قونصلیٹ کے عملے کے علاوہ انڈین کمیونٹی کے کئی ارکان بشمول قدرت نواز بیگ، قمر سادہ، اسلم افغانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد مذکورہ افراد مدینہ منورہ پہنچے، جہاں آفتاب نظامی نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ان سے ملاقات کی اور ان کا خیر مقدم کیا۔ آفتاب نظامی نے ثانیہ مرزا، انم مرزا، اسد الدین، عمران مرزا کے علاوہ ہندوستان سے تشریف لائے معروف بزنس مین مفتی انس اور ان کی اہلیہ ثنا خان سے بھی ملاقات کی۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ کا شاید پہلا موقع ہے جب لوک سبھا کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں کے لیے انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ لوک سبھا میں بی جے پی کو واضح اکثریت حاصل نہ ملنے کی وجہ سے حکومت تشکیل دینے کے لیے بی جے پی کو این ڈی اے کی اتحادی جماعتوں کی تائید حاصل کرنی پڑی، لیکن اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے معاملے میں کانگریس زیر قیادت اپوزیشن انڈیا اتحاد نے حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ لوک سبھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے مرکزی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، جس کے بعد اپوزیشن نے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف این ڈی اے کی طرف سے اوم برلا میدان میں ہیں تو دوسری جانب کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سریش نے انڈیا اتحاد کی جانب سے اسپیکر کے عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ یہ تاریخ میں تیسری مرتبہ ہوگا جب اسپیکر کے عہدے کے لیے انتخاب ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج دن میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سے فون پر بات کی اور اسپیکر کے عہدے کے لیے حمایت مانگی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن اسپیکر کے عہدے کی حمایت کے لیے تیار ہے، لیکن اپوزیشن کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ملنا چاہیے، لیکن اس پر راجناتھ سنگھ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں جے فلسطین کے نعرے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ نعرہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر
और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं। बताया गया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को 5वीं मरतबा लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीन की ताईद में नारे लगाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 18वें लोकसभा के रुकन की हैसियत से जब हलफ लिया, उस वक्त ऐवान में मौजूद बीजेपी के अरकान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में सदर मजलिस ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन और तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मयाद में भी बजट इजलास के दौरान बैरिस्टर अवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह को अभी चंद माह भी नहीं गुजरे कि पहली बारिश में ही मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा और बाहर के अहाते में पानी जमा हो गया। इनके मुताबिक जहां राम लल्ला मौजूद हैं वहां भी पानी भर गया। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर भी बारिश का पानी जमा हो गया, जो बाअस फिक्र है। आचार्य का कहना है कि जो राम मंदिर तामीर हुआ है इसमें पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, इसकी वजह से पानी ऊपर से टपकने लगा। ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले इस मसले की तवज्जो होनी चाहिए। अगर इस मसले की यकसुई नहीं की गई तो मंदिर के दर्शन और पूजा बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस बात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि मंदिर से क्यों पानी टपक रहा है। वाज़ेह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक़िद हुई थी। हालांकि अभी राम मंदिर की तामीर का काम जारी है और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। 25 तक पूरा हो जाएगा तो वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूहता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने बीआरएस की अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने के इक़दाम की शदीद मुखालिफत की है। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ई अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को दरकार अक्सरियत से ज़्यादा अरकान असम्बली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 65 अरकान असम्बली हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान भी ज़रूरत पड़ने पर बीजेपी की मुखालिफत में कांग्रेस की तायद करेंगे। एमआईएम के अलावा सीपीआई के एक रुकन को मिलाकर कांग्रेस के अरकान की तादाद 73 तक पहुंच जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बीआरएस पार्टी के अरकान को शामिल करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में दीगर जमातों के अरकान को शामिल न करने का वादा किया था। अब किस लिए दीगर जमातों के अरकान को शामिल किया जा रहा है। సంతృప్తి అనేది కాదు, జరిగిన పరిణామాలపై ఏదైతుందో చర్చించడం జరిగింది. జరిగిన పరిణామాలపై చర్చించడం జరిగింది. కానీ శాసనసభ్యులు అనేది సంఖ్యాపరంగా మరి ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండాలనే ఒక భావనతోని మరి ఇతర పార్టీలకు చెందినటువంటి ఒక శాసనసభ్యులు పార్టీలు చేసుకోవాలని చెప్పని తలంచవచ్చు. కానీ ఆ చేరిక అనేది ఆ ప్రాంత కార్యకర్తల యొక్క మనోభావాలను కూడా గౌరవించాల్సినటువంటి బాధ్యత పార్టీపై ఉంటుందని చెప్పని నేను భావిస్తాను. చెప్పండి, ఇలా దశాబ్ద కాలం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుండి కూడా మరి ఈ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కొరకు కృషి చేసినటువంటి కార్యకర్తల మనోభావాలకు భిన్నంగా
అది కేవలం శాసనసభలో సంఖ్యాబలం అటువంటి భావంతో చేసుకోవడంతో बीआरएस सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव को हाई कोर्ट में आज इस वक्त राहत मिली जब अदालत ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए 2011 के ट्रेन रोको केस में तहकीकात पर रोक लगा दी है। 2011 में तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने इनके खिलाफ दर्ज रेल रोको केस को हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में केसीआर ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को ख़त्म करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा था कि वो ट्रेन रोकने में मुलविस नहीं थे। उनका कहना था कि इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान केसीआर की दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर केस की समाअत करने के बाद अदालत ने अगले अहकामात तक तहकीकात पर रोक लगाने के साथ साथ इस मुकदमे की अगली समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली अफगानिस्तान ने आज एक और फतह अपने नाम कर ली है। अफगानिस्तान ने ग्रुप 1 के हिस्से के तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ आज के मैच में डकवर्थ लुईस तरीके के मुताबिक 8 रन से कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल करके टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अफगानिस्तान की जीत से ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की उम्मीदें दम तोड़ गई। बंगाल के बल्लेबाज लिंटन दास की लड़ाई रायगा गई। उन्होंने 54 रन्स बनाए और नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर सिर्फ 115 रन बनाए। अफगान बल्लेबाजों ने गुरबाज ने सबसे ज़्यादा 43 रन बनाए, लेकिन बांग्लादेश जो एक छोटे हदफ के साथ यके बाद दीगर विकेटें गंवा बैठा। इसके साथ बारिश के बाद मैच मज़ीद दिलचस्प हो गया। डकवर्थ लुईस तरीक़ेकार के मुताबिक बांग्लादेश एक मरहले पर आगे रहा, लेकिन बारिश दोबारा रुकने के बाद मैच शुरू कर दिया गया। खाने काबा की चाबी अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन के हवाले, सऊदी हुकूमत का फैसला। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जय फलस्तीन के नारे, जय श्री राम के जवाब में सदर मजलिस ने बुलंद की सदाए तकबीर। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत, फैसला महफूज। और लोकसभा स्पीकर के लिए होगा इंतखाब, हुक्मरान जमात और अपोजिशन ने उतारे उम्मीदवार मैदान में। ये थी एतमाद की खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।